अब हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट को पाई चार्ट ही वो कहा जाता है क्योंकि इसमें आप कुछ देख सकते हैं, कुछ पाइज यानी कुछ स्लाइसेस बने हुए हैं। इसका नाम ही पाई चार्ट है। और जब भी आपके पास पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है, यू नीड टू बी एजाइल बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट। देयर इज नॉट एनी continuous data, as we have seen that in the line graph we have to solve from 2001, 2002, 3, 4 and 5. The continuous data was there, but now there is not any continuous data because you can say that the one pie chart is indicating about the year 2003 and the next one is indicating about the 2005. There is some sort of the prompt as well. The given pie chart gives the information about the contribution of some sector in the economy of Turkey in 2003 and 2005. Student, be ready about this type because this type is going to hit you in your exam, and if you just remain unable to solve this type according to its settled pattern, you are going to lose your marks. For example, if you just say that from 2003 to 2005, it means your whole report writing will be mistaken because आपने यहाँ पर क्या गलती कर दी, आपने 2003 to 2005 कह दिया because there was the absence of the 2004, but you have mentioned the year 2004. So where is the 2004's concept? So you need to be agile while attempting this report writing. There is a question and you may do the paraphrasing in the introduction, and in the previous video I have already given you the example of the line graph. In the introductory paragraph we attempt the paraphrasing. So this is your question and I recommend you all to attempt the paraphrasing of this question in your introductory paragraph because I am writing here the overview paragraph. So आप लोग अब इसका introduction कीजिए, मैं इसका overview लिखती हूँ. Student, now you can see that there's an overview paragraph. Be ready about it because I'm gonna share some sort of the strategies while writing this overview paragraph. Because in the overview paragraph of the pie chart, you will see the huge difference in the previous type as well as the new one. You will always start your overview paragraph by using this line overall comma. It can be seen that this line will remain constant in every kind of the introduction in the overview paragraph or every kind of the report writing. But you can say that there is not any presence of the year 2004. It means 2003 cannot be the previous year and 2005 cannot be considered as the next year, because if I say that uh, in the previous year, in the next year, so my data will be mistaken because there is an absence of the 2004. So you will say that the initial year and the last year, not the following year, not the next year. This kind of the vocabulary can be considered as illogical. So आइए जरा देखते हैं. The sector A showed the least contribution and G portrayed the highest one in the initial year. You can say that the A was the minimal one among the all and G portrayed the highest one with a percentage of 30, because I am not supposed to write any percentage in this paragraph. So I have just said that A and G with the least and highest contribution. And now I will move from the previous one to the last year. While the sector F participated majorly in the last year, and I'm talking about the major contribution by the sector in the last year. So I can say that the 32% by F. So the sector F participated majorly in the last year while there was an introduction of sector H. You can say that there is an introduction of the sector H that was not in 2020 in 2003. So there is some sort of the strategy about writing the overview paragraph. I am saying you, I am writing some sort of the strategies as well. You may use this strategy. I say this strategy as infinity approach. This is my approach. You cannot find this approach on the internet. In pie chart, you may use this strategy. What kind of the strategy is this? Just consider. If you are talking about in the initial year, I think that this is the 2003 and this one is 2005. Whenever you are writing your overview paragraph, so you will say that the highest contribution was made by, for example, the sector A, and the lowest contribution was done by sector F. I'm just giving the example here. But as you move towards the next year in writing the overview, so you will say that the reverse approach. Firstly, you discuss the positive and means the highest approach. Now in the next year, you will discuss about the least approach. That kind of the approach, in my terminology, it is considered as infinity approach. So
You may use this one approach. For example, the sector A showed the highest contribution in the initial year, while sector F showed the least contribution, as well as, या while और by using any contraction आप कह सकते हैं कनेक्टर की मदद से। अब आप यहाँ पर क्या करें, रिवर्स करें। पहले आपने किसी बड़े सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बताई थी और छोटे की, अब आप पहले नेक्स्ट ईयर में किसी छोटे की बताएंगे देन बड़े की बताएंगे। इस तरह की अप्रोच आपके डाटा को एक तो अट्रैक्टिव बनाती है। द सेकंड अप्रोच इज दैट आपने पहले ईयर की यानी फर्स्ट ईयर की मेजर एंड लीस्ट अप्रोच के बारे में बात कर दिया, एंड यू विल फाइंड द न्यू सेक्टर आई एम राइटिंग इन दिस स्टार। आप किसी नए सेक्टर को फाइंड करेंगे यहाँ पर, या फिर आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कांस्टेंट रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानती हूँ आप ओवरव्यू लिखने के लिए आप यहाँ पर ये अप्रोच भी कह सकते हैं, the major contribution was done by sector A, while the least contribution was done by sector F in the initial year. But there is an introduction of sector G as well as sector H remained constant. तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर भी किसी हाईएस्ट एंड लोएस्ट की बात करें, आप यहाँ पर कांस्टेंट एंड इंट्रोडक्शन वाले की तरफ भी जा सकते हैं। ये दो अप्रोचेस आपके ओवरव्यू बताने के लिए जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन यू विच वन वुड यू लाइक टू सेलेक्ट, बट आई विल पर्सनली प्रेफर दिस वन, क्योंकि ये बचकानी अप्रोच है। आपने पहले किसी बड़े के बारे में बता दिया, फिर छोटे के बारे में, और फौरन ही आपने नेक्स्ट ईयर में किसी छोटे एंड बड़े के बारे में बता दिया। अब आप क्या करेंगे, बजाय इसके कि आप ये करें, आप ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट एंड लीस्ट कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद आप किसी कॉन्स्टेंट या न्यू वन की तरफ जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन यू इन व्हाट मैनर यू राइट योर ओवरव्यू। सो जस्ट राइट योर ओवरव्यू इन योर ओन वर्ड एंड टेल अस इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। आगे बढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ। Now I am moving towards the body para 1 and body para 2. Student, you are supposed to just solve your data as it is given. For example, you cannot add any additional information by your end. Lots of the student who have lots of the vocabulary, so you may use the vocabulary but not the additional information. What is the difference between vocabulary and nouns? Student, whatever the data is given, you may use the varied range of describing that data in your own words. Okay, this terminology is okay. But if you are going to add the nouns as well, so it will be mistaken. For example, lots of the students say that this depression is just because of the inflation. No, there is not any sector of the inflation is mentioned in the question. So how can you say that the inflation was the reason to be the depression? So no, you are just here to illustrate the data, not to define the data and not to find the causes as well. तो स्टूडेंट आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आगे चलते हैं बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 की तरफ। आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन बिफोर कि इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के अंदर सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ द लाइंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू राइट योर इंट्रोडक्शन इन जस्ट 1.5 lines in computer, so you are supposed to write around 1.5 and 2 lines about the overview on the computer. And if you write the body paragraph, so there should be the equivalency between two paragraphs. For example, if you write the paragraph body para 1 in the 4 line, so you may exceed your body para 2 just around 5 lines, because there is not any consideration of having the paragraph less than 4, sorry. It means there is not any paragraph who can be made with the combination of 3 lines and more than 5 lines. कोई भी पैराग्राफ 3 लाइन का नहीं होता और 5 लाइन से ज्यादा का नहीं होता। इट मीन्स 4 लाइन से कम कोई पैराग्राफ नहीं होता। बॉडी पैराग्राफ्स की बात कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू तो आपका 1.5 से 2 लाइन के अंदर चला जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ 4 लाइन से कम और 5 लाइन से ज्यादा नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट के अंदर बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे डिस्कस किया जाता है। Instead of wasting your time, I am just focusing on the main concept, which one strategy is better for you. So I am writing here to discuss something with you. यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट थे, आपने देखा। तो अब मैं यहाँ पर आपसे कहने लगूँ कि मैंने डाटा उसको बोर्ड जरा मेरे पास छोटा था, तो मैंने उसको डाटा को एक तरफ सेग्रीगेट कर लिया था। तो आइए जरा डाटा को हम एक तरीके से रफली सेग्रीगेट करके देखते हैं। स्टूडेंट, आपने पाई चार्ट के अंदर जब भी आपके पास ऑन स्क्रीन आप होंगे, स्टूडेंट इसका बहुत ख्याल करना है। इंटरनेट पर बेतहाशा ऐसा मटेरियल मौजूद है जो आपको कहता है पहला पाई चार्ट पहले पैराग्राफ में डिफाइन कर दे बॉडी पैराग्राफ में, दूसरा वाला दूसरे में बता दें। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही वर्स्ट केस में। लेकिन आपने क्या करना है, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। उसका रीजन क्या है, मैं मना यूं करती हूँ क्योंकि वहां पर रिपीटेशन ऑफ द सेक्टर आ रहा है। डेफिनेट सी बात है, आप किसी सेक्टर ए को बॉडी पैरा 1 में बता रहे हैं, फिर बॉडी पैरा 2 में। एक तो रिपीटेशन ऑफ द सेक्टर, अगर 8 सेक्टर है तो आपके समझ में 16 मरतबा तो वो वर्ड ही रिपीट हो गए। इसके अलावा आप बार बार बात करेंगे परसेंटेज की,
तो पढ़ने वाले को ये लगेगा कि आपने सिर्फ काम चलाया है, समझाया नहीं है। हम वहां पर थोड़ी देर को डाटा एनालिस्ट समझकर अपने आप को अलाइन करता है। तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट मिटाकर सिर्फ अपने डाटा को जरा सा रफ वर्क में ऑर्गेनाइज कर लिया है। मुझे ये देखना था कि ए मेरे पास सेक्टर जो था इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 5% एंड देन इट गॉट डिक्रीज्ड, और ये कहां पर पहुंच गया 3% पे। इसके बाद सेक्टर बी भी मेरे पास डिक्रीज पे आया, तो मैं इन दोनों को कह सकती हूँ कि ये दोनों डिक्रीजिंग सेक्टर पे है। इसके अलावा एच मेरे पास एक ऐसा सेक्टर था जो कि नया आया था, इसकी रेंज क्या थी, नया आया था। ये दोनों सेक्टर मेरे पास कौन से हैं जो कि कांस्टेंट रहे हैं। इसके अलावा ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंक्रीज कर गए हैं। कैसे पता चला इंक्रीज कर गए हैं, आपको पता होता है हम ऐसे फर्क निकालते हैं कि प्रीवियस ईयर में देखते हुए नेक्स्ट ईयर में उनका फर्क देखते हैं। अगर पहले ईयर की परसेंटेजेस ये हैं तो नेक्स्ट ईयर में देखकर ही वो पता चल रहा है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है या कांस्टेंट है। स्टूडेंट अपने डाटा को अलाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ एंड टेबल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे। आप ये देख सकते हैं कि डाटा को बराबर करना है। अब मुझे कुछ नहीं पता डाटा को कैसे बराबर करना है। स्टूडेंट सेम नेचर हमेशा सेम साथ रखिएगा। इंक्रीज वाले 3 हैं, डिक्रीज वाले 2 हैं, और मेरे पास एच भी आ गया है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ इंक्रीज वाले 3 हैं और एच जो एक नया सेक्टर था, क्योंकि एच की अगर मैं बात करती हूँ तो वो अपनी नेचर में पॉजिटिव यानी इंक्रीज हुआ है। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका इंक्रीमेंट है, मैं उसकी नेचर डिक्रीज नहीं कह सकती क्योंकि वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, और नया जो एडिशन होता है हमेशा वो पॉजिटिव नेचर होता है। इसलिए मैं इसको इंक्रीजिंग वाले ट्रेंड के साथ रखूंगी, दैट्स वाई डी एफ ई और इसके साथ ही एच ये मेरे एक पैराग्राफ में डिस्कस होंगे ताकि सामने वाले को पता चले कि इन्होंने डाटा को अलाइन किया है। और इसके साथ ही क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट वाले 2 थे सी जी, पहले मैं इन 2 की बात करूंगी और उसी पैराग्राफ में ऐड करके ए एंड बी की भी बात कर दूंगी। कैसे, अब हम डिस्कस करते हैं। बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 हमेशा आपने डिस्कस करना होता है पास्ट सिंपल टेंस में। तो आइए जरा हम डिस्कस करते हैं पहले बॉडी पैरा 1 को। मैं बॉडी पैरा 1 अगर आपको समझा देती हूँ, बॉडी पैरा 1 मैं चाहूंगी कि आप लोग लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है। मैं काफी मर्तबा कह चुकी हूँ कि आपकी वोकेबलरी चेंज होनी चाहिए। आपकी वोकेबलरी का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पर राइज लिखा है, क्योंकि सेकंड फॉर्म रोज हो जाएगी, तो अब आपने अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप इट गॉट रोजन कर दें या इट गॉट राइजन कर दें, या मतलब कहीं आपने इंक्रीज किया इंक्लाइन करें, शो द पॉजिटिव ट्रेंड करें, कुछ भी करें, लेकिन आपने वोकेबलरी तब्दील करनी है। सो आई थिंक दैट द बॉडी पैरा 1 इज इजी फॉर यू बिकॉज आप पहले टू बिगिन विद करके डी के बारे में बात करेंगे, इट वाज एट द वैल्यू ऑफ 20% एंड लेटर इट बिकेम दिस। ऐसे यानी आपने प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाना है और इन 4 सेक्टर के बारे में आप लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट ये बात आपके लिए काबिल गौर है बिकॉज आपने अब हमने देख लिया कि हमने पार्ट 2 यानी सॉरी बॉडी पैरा 2 भी लिख लिया है, और बॉडी पैरा 2 में मैंने रेस्टिंग सेक्टर्स कंप्लीट किए थे विद द यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल की मदद से। ये बात भी हम देख चुके हैं कि वोकेबलरी कौन सी लगानी होती है, सेकंड फॉर्म के साथ आती है। तो ये तमाम बातें हमारी पुरानी वीडियोज में भी हो चुकी हैं और अभी भी हमने कॉन्स्टेंटली इन बातों को दोहराया है। अभी आपके सामने ये बॉडी पैरा 2 है, आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको आप स्नैप भी ले लें। फिलहाल मैं आपके पास आई हूँ एक्सप्रेशंस के साथ। ये आपके लिए एसेट है किसी भी रिपोर्ट राइटिंग के लिए। जो वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी है कि हाउ टू एक्सप्रेस योर डाटा, वो आपने एक्सप्रेशंस की मदद से देखना है। आइए जरा कैसे। आपके पास डाटा को एक्सप्रेस करने के 4 तरीके होते हैं। ये एक एडिशनल पार्ट है और स्टूडेंट आपको ये बात समझनी चाहिए कि बार बार आप एक ही अप्रोच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल the sector A was at the value of 5% and then it became 10%. The sector B was at the value, तो बार बार मैं state and action, बार बार state and action, ये सही नहीं रहता। तो expand your data by using these 4 terminologies and 4 expressions in your writing. The first approach is called simple approach and we have discussed the simple approach in a very delved manner in the previous video as well. For example, the sector A was at the value of 10% and sector B the sector A was at the value of 10% and later it became 12%. The sector B was at the value of 10% and later it became 12%. The sector C was at the value of 15%, later it became 20%. हम वहाँ क्या कर रहे थे, सिर्फ वर्ड्स को तब्दील कर रहे थे, बिकेम की जगह राइस लगा रहे थे या राइस की जगह रोज आ रहा था, ग्रीव आ रहा था। वो हमारी सिंपल अप्रोच है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड अप्रोच। आप तवज्जो रखिएगा बोर्ड पे। डिफरेंस अप्रोच को कहते हैं किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए सेकंड अप्रोच। बार बार आप ये ना कहें कि ये डाटा इतने पे था और इतने पे चला गया, वो तो बेसिक अप्रोच हो जाएगी। आपने डिफरेंस अप्रोच निकालनी होती है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, लास्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना होता है।
अगर 12 माइनस 10 करती हूँ तो आपको पता है 2% का इसमें इंक्रीमेंट आया है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं द सेक्टर ए वॉज एट द वैल्यू ऑफ 10% इन द इनिशियल ईयर एंड देन इट इंक्रीज बाय 2% बिकॉज ऑफ द डिफरेंस अप्रोच, क्योंकि 2% से इंक्रीज कर गया ये, एंड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 2% इट बिकेम 12%। तो आपने डिफरेंस अप्रोच का भी सहारा ले सकते हैं अपने डाटा को बताने के लिए। द थर्ड वन इज एक्सप्रेशंस। ये मेरी बताई हुई अप्रोचेस हैं जो आपके काम आ सकती हैं। एक्सप्रेशंस अप्रोच का मतलब क्या होता है? द सेक्टर ए वाज एट द वैल्यू ऑफ 10%, then it moved to the value of 12%, और इसका आप कह सकते हैं then it moved to the dozen। तो यहाँ जो डजन का मैंने यानी जो दर्जन का जो मैंने लफ्ज लगाया आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई डाटा है 3% पे और वो 21% तक चला गया, तो आप कह सकते हैं इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 3% एंड देन इट मूव्ड विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो जाएगा? काफी गुना बढ़ गया। विद द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड रीच एट द वैल्यू ऑफ 21%। अगर आपके पास कोई डाटा ऐसा था कि 3 था और वो 9 हो गया, इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 3% एंड देन इट गॉट इंक्रीज बाय 3 फोल्ड। 3 फोल्ड का मतलब क्या है? 3 गुना, यानी 3 फोल्ड एंड बिकेम 9%। अच्छा, अगर आपके पास कोई डाटा ऐसा था कि 15 था और उसके बाद वो 25 हो गया, इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 15%, जो भी आप बताना चाहे, इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 2%, 5%, जो भी था, बट इट गॉट इंक्रीज एंड बिकेम द क्वार्टर। अब आपको पता है 100 में 4 क्वार्टर होते हैं। इट बिकेम अ क्वार्टर विद परसेंटेज ऑफ 25। अगर वो डाटा 25 से थोड़ा ऊपर हो जाए, इट जस्ट मूव, इसको ऐसे कह सकते हैं, इट मूव जस्ट अबव द क्वार्टर विद द परसेंटेज ऑफ 26%। अगर 25 से कम हो जाए, इट मूव्ड टू ऑलमोस्ट द क्वार्टर विद द परसेंटेज ऑफ 24। जब अबव होता है डाटा तो हम कहते हैं अबव, और जब अंडर की तरफ आ रहा होता है तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली के साथ हम बता देते हैं इट मूव टू द वैल्यू ऑफ 24%, अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर। अप्रोक्सीमेटली अराउंड हम इसकी बात करते हैं कि कवर करने के बराबर था। अच्छा, अगर कोई परसेंटेज ऐसी थी, आपके पास 5% थी और उसके बाद वो बढ़कर 50 पे चली गई, तो पहले वाला तरीकेकार तो सबका सेम है, आप देख सकते हैं इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 5%, 10%, मैं यही कह रही हूँ। लेकिन लास्ट वाले को डायरेक्टली आप ये ना कहें कि इट बिकेम 50, आप इसमें क्या कह सकते हैं? इट मूव टू द परसेंटेज, यानी आपने एक डिफरेंस अप्रोच के साथ बता दिया। दूसरा बता सकते हैं इट बिकेम हाफ ऑफ द पाई चार्ट, तो 50 हो गया, इट बिकेम हाफ ऑफ द पाई चार्ट। तो आपने वर्ड्स को एक्सप्रेशन में जब लेकर आएंगे तो ये भी आपके पास एक डाटा को एक्सप्रेस करने का अच्छा तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं रिस्पेक्टिवली की अप्रोच की तरफ, और ये आपका टाइम सेविंग अप्रोच कहलाती है। रिस्पेक्टिवली को मेरी आसान अल्फाज में अकॉर्डिंगली की अप्रोच भी कहा जाता है। अकॉर्डिंगली की अप्रोच का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा, ये तो खैर बहुत आसान आसान सा डाटा था कि हर सेक्टर अलग अलग एक खास कंट्रीब्यूशन कर रहा था। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई 2 सेक्टर आ जाते हैं या 3 ऐसे सेक्टर आ जाते हैं जिनकी अराउंड अराउंड वैल्यू पहले 10, 12, 13 और 19 थी, एक अराउंड एक ही सीक्वेंस में आ रही है अराउंड, इतना मसला नहीं है। बाद में इनमें फर्क पड़ा, कोई 11 पे आ गया, कोई 14 पर, कोई 15 और कोई 20। पहले भी एक सीक्वेंस में आ रही थी, इस सीक्वेंस में आ रही थी। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इन अ डिफरेंट मैनर के भाई हर अल्फाज कितना बयान करूं, तो आप इन सबको रिस्पेक्टिवली के अप्रोच में लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेक्टर ए वॉज एट द वैल्यू ऑफ 10%, सेक्टर बी कंटेन 12%, सेक्टर सी कंप्राइज्ड 13%, एंड सेक्टर डी आप बता सकते हैं सेक्टर डी एग्जिस्टेड ऑन द परसेंटेज ऑफ 19% इन द इनिशियल ईयर, बट अब आपने हर किसी का इनिशियल ईयर तो बता दिया, बट दे बिकेम, अब सबको आपने क्या कर दिया, सबको एक वर्ड में डाल दिया दे, अब आप सबको एक ही साथ बताने लगे हैं। दे बिकेम 11%, कॉमा 14%, कॉमा 15% एंड 20%, और एंड में आप लगा देंगे रिस्पेक्टिवली या अकॉर्डिंगली। तो एक ही लाइन में 4 सेक्टर बता दिया आपने और टाइम सेव हो जाएगा। तो आपके पास 4 टर्मिनोलॉजीज आती हैं डाटा को एक्सप्रेस करने की। आप सिंपल अप्रोच, मैं एक बार इसको रिवाइज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सेक्टर ए है और वो 12 तक बढ़ गया, तो आप यही कहते थे द सेक्टर ए वॉज एट द वैल्यू ऑफ 10% एंड लेटर इट बिकेम 12%। फिर हम बिकेम की जगह कह देते थे कि इट रीच टू द वैल्यू ऑफ 12%, इट गॉट द वैल्यू। ठीक है, वो सब हमारे पास सिंपल अप्रोच है, उसके साथ भी आप डाटा बता सकते हैं। अब अपने डाटा को मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें, कुछ अच्छा लगा लें जरा, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस अप्रोच। आप एक टर्मिनोलॉजी लेके गए, कोई सेक्टर सी था और वो 5% पे था और वो एंड में 8 हो गया,
So the sector C was at the value of 5% and it got increased by the 3% because इन दोनों का फर्क निकाला, it got increased by 3% and reached to the value of 8%. कोई तीसरा सेक्टर लेकर आ जाए एक्सप्रेशन वाला, आपने कहा कि ये 12 था और ये डिक्रीज होकर 6 हो गया, मैं इनको इंक्रीजिंग सेक्टर में बता रही हूँ, आप इनको डिक्रीज में भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको खुद आना चाहिए ना। अगर कोई वैल्यू 12 पड़ती, आप बता दें इट वॉज एट द वैल्यू ऑफ 12% इन द इनिशियल ईयर एंड देन इट गॉट रिड्यूस्ड बाय हाफ। बाय हाफ का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया, इट गॉट रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड रीच टू द वैल्यू ऑफ 6%। तो आपने क्या करना है कि आखिरी ईयर के बताने से पहले कोई आपने एक एक्सप्रेशन भी डाल दी, और लास्ट हमारे पास आता है रिस्पेक्टिवली। ये बहुत सारे सेक्टर्स को एक ही लाइन में डिस्कस करने के लिए होता है कि सेक्टर ई, सेक्टर एफ, सेक्टर जी कंटेन्ड 10%, 12%, 13% रिस्पेक्टिवली। तो एक ही लाइन में आप बता देंगे, इंस्टेड ऑफ क्या बताएं सेक्टर जी ये था। तो फिर आपने क्या करना है, जो सेम सेम सीक्वेंस की वैल्यूज हैं जो एक लाई कर रही हैं, फॉल कर रही हैं कैटेगरी में, उनको आप रिस्पेक्टिवली के साथ बता दीजिएगा। मैं इसको ऐसे बता देती हूँ कि सेक्टर ए was at the value of 10%, sector B contained 12%, sector C comprised 13 and D existed on the value of 19%. But later they became 11, 14, 15 and 20% respectively. So I hope आपको ये पाई चार्ट समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि इसके बाद एक बहुत छोटी सी टाइप है, हार्डली 2 और 3 मिनट्स की है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। आजकल बहुत NIRS के क्वेश्चंस में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। Student, now I am moving towards my fourth important type of the report writing, that is called combination. आजकल स्टूडेंट इस बात को अच्छे से जानते हैं, जो 2024 के बाद से अजीब एक रेवोल्यूशन आ गई है कि हर राइटिंग में तकरीबन, अगर आपके पास मंथ में कोई 15 to 20 टास्क है या टेस्ट हो रहे हैं, आप समझ लें 7 to 8 टाइम्स तो कॉम्बिनेशन आ ही रहा है। मोस्ट रिपीटेड टाइप आपका ये बन गया है। पहले ऐसा था कि पहले इसके बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इन हो गया है। तो कॉम्बिनेशन में हमने जो भी 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं, लाइन, बार, पाई चार्ट एंड टेबल, तो इनकी वीडियोज भी मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। मजीद जो 2 टाइप्स की वीडियोज है जिसका नाम है प्रोसेस एंड मैप, उनका कॉम्बिनेशन में कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लाइन ग्राफ ऐसे करके दे दिया जाएगा कि ये लाइन ग्राफ ए बी और ये सी दे देंगे, क्योंकि याद रहे, क्योंकि अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है तो वो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा नहीं देंगे। यहाँ पर कोई ईयर मेंशन कर देंगे वो आपके साथ 2001, 2002, 2003 कर दिया। इसके अलावा आपके पास कुछ परसेंटेजेस यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर दी 5, 10, 15 एंड 20। इसके साथ ही वो आपको एक टेबल पकड़ा देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ आ जाएगा, और टेबल वाली टाइप आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप मेरी वीडियोस देख लेंगे। आपके पास ऐसे करके कोई आ गया है, आप अंदाजा लगा लें, मैं इस वक्त बस आपके साथ आसान करके बताने लगी हूँ, और यहाँ पर कोई ईयर है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 4 टाइप है, या तो वो लाइन को बार के साथ दे देंगे, लाइन को पाई के साथ, या लाइन को टेबल के साथ, या बार को पाई के साथ, बार को टेबल के साथ, पाई को टेबल के साथ, किसी को भी किसी के साथ दे देंगे, लेकिन 3 टाइप्स का मिक्सचर नहीं होगा, ओनली 2 टाइप्स का ही होगा। आपको ये दोनों सवाल मिक्स करके दे दिए। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको आप याद रखिएगा, नेवर क्रिएट अ लिंक बिटवीन 2 डायग्राम्स। ये बात याद रख लें, चाहे तो लिख लें आप इसको, नेवर क्रिएट अ लिंक बिटवीन 2 डायग्राम्स। आपके पास ये आ जाए, आपके पास लाइन ग्राफ आ गई, आपके पास टेबल आ गया, आपको दिखने में भी लगेगा कि इनके दरमियान तो लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको ऐसे करके कह देंगे कि एजुकेशन इन यूएस, और इन्होंने बता दिया एजुकेशन इन यूएस के हवाले से आपको लाइन ग्राफ दे दिया, और इन्होंने आपको ये बता दिया कि एजुकेशनल सेक्टर पर एक ऐसी बता रही हूँ रफली में, आप समझ जाएंगे, एजुकेशनल सेक्टर पर कुछ कंट्रीज ने कंट्रीब्यूशन की है। आप अब अंदाजा लगाएं, आप बोलेंगे एजुकेशन भी सेम है, ये भी एजुकेशन सेम है, इसका मतलब मैं गलत कह रही थी, कॉम्बिनेशन इनके दरमियान बनेगा। कॉम्बिनेशन नाम का कॉम्बिनेशन है, इनके दरमियान कोई लिंक नहीं होता। पहली बात, आपके पास एक क्वेश्चन आता है लिखा हुआ, द गिवन लाइन ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दी। अब हो सकता है ये ए बी और सी जो है वो आपको ऐसे करके दे दें कि ए जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, बी आपके पास प्राइवेट स्कूल है, और सी हमारे पास होम ट्यूशन है। स्टूडेंट को देखने में ही पता लग रहा होता है कि यार 5% तो लिंक है,
5 भी नहीं है, 50% है, जी नहीं, इनके दरमियान बेटा कोई लिंक नहीं है, आपने ख्याल करना है इस बात का। ए में वो क्या कह रहा है जरा आप गौर से देखें, आपको हर सवाल अलग से नजर आएगा। कहना वो ये चाह रहा है कि आपको एक ही सवाल में से दो डायग्राम उठाकर दे दिए, दोनों अलग अलग नेचर की हैं। लाइन ग्राफ में वो आपको बता रहा है कि एजुकेशन जो यूएस में है, इसमें कोई 3 कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की है। गवर्नमेंट स्कूल का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइवेट स्कूल का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि होम ट्यूशन मेरा कांस्टेंट रहा है। आप इस बात को देख सकते हैं। तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्री की बात हुई है, यूएस में कोई 3 कंपोनेंट। बाकी आप यहाँ देखें, बाकी यूके के गायब है और चाइना के गायब है। तो हमें ये बात समझ आई कि एजुकेशनल सेक्टर में चाइना ने इन सालों में ये परफॉर्म किया है। अगर मैं देखती हूँ, यूके 2001 में 10 था, 15% हो गया 2002 में, और 2003 में 15, यानी कॉन्स्टेंट। आप ये देखें, यूएस मेरे पास डिक्लाइन पे गया है, चाइना ऑलमोस्ट फ्लक्चुएशन पे गया है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों जो क्वेश्चन होगा उसकी पैराफ्रेजिंग आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वहां लिखा हुआ आता है द गिवन लाइन ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम सेक्टर्स in the region of education in US, while table gives the information about the participation of 3 countries in educational sector। जो भी आप बता रहे हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन दिया उनको आपने पैराफ्रेजिंग कर दी। दोनों के लिए कोई एक एक, दोनों डायग्राम में से कोई एक एक आप नोटिसेबल पॉइंट उठा लेंगे। मुझे लाइन ग्राफ के बारे में सारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बता दूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट इन लाइन ग्राफ गवर्नमेंट the sector of government showed the increasing trend while home tuition faced constant। ये मैंने लाइन ग्राफ का, अब मैं इसी ओवरव्यू को कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं दोनों को एक साथ बताना है। ऑन द अदर हैंड या इन कंट्री, यूएस faced the declining trend in education throughout the period। यानी सब सेक्टर की बात नहीं करनी है, मैंने उनकी पैराफ्रेजिंग कर दी। उन दोनों में से कोई एक एक नोटिसेबल पॉइंट, मैंने यूएस का लिया, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द गवर्नमेंट शोड द इंक्रीजिंग ट्रेंड व्हाइल प्राइवेट सेक्टर फेस्ड द डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इन कंट्री, यूके यूके शोड द इंक्रीजिंग एज वेल एज, या आप इसको ऐसे कह सकते थे, और इन कंट्री चाइना कंटेन्ड द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन एज कंपेयर टू यूएस एंड या एज कंपेयर टू द अदर 2 कंट्रीज इन टेबल। जो भी आपको नजर आया, यानी ओवरव्यू आपका अपने ऊपर है। आते हैं शॉर्ट टाइप, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। बॉडी पैरा 1 में आपकी फर्स्ट डायग्राम डिस्कस होगी एंड बॉडी पैरा 2 में आपकी सेकंड डायग्राम डिस्कस होगी। स्टूडेंट, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, चाहे वो लिंक कितना भी क्रिएट करने की कोशिश कर लें, आपने लिंक क्रिएट नहीं करना है। आप वही करेंगे टू बिगिन विद, या जो भी आपने कनेक्टेड लगाना है उसके बाद आप बताएंगे इट वॉज एट द वैल्यू। पहले हम क्या कर रहे थे लाइन ग्राफ में, इनके सेक्टर्स अलग अलग कर रहे थे, ट्रेंड्स निकाल रहे थे। अब आपने सबको एक में बताना है और तमाम टेबल को एक में बताना है, तो इनका कोई कनेक्शन आपस में नहीं मिलता। सो अपनी बात को हम यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी प्रोसेस एंड मैप की डायग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।